जगह कुठे 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 जरा जागा द्यावं का? एक मिनिट जरा. अरे हे अरे कशाला करतो असा? Don't fight. No. अरे इसका हो गया कोई भी इसलिए बुलाया उसको जरूरत इसकी ऐसे भी बंद कर यार आवाज आ रहा है काश का सामने से मैडम आप सामने आ जाइए छुट्टियां पर क्यों किया यार इतने टाइम अरे कोई धक्का काच पे कोई ठोको मत एसी ऑफ कीजिए ऑफ बराबर और काच साफ करो पहले काच साफ करो काच साफ करो साफ कर अरे काच साफ कर नहीं सुन रहे हो ये जाने दो अरे अरे विक्रांत बोल रहा यार ए विक्रांत बोलो ना काच साफ करने का कुछ दिखता ही नहीं यार नहीं है सर वो आप कुछ दिखता ही नहीं कुमार इसको एक बार उधर कैमरा इतना अरे हाथ निकाल यार हाथ निकाल ले सर ए मैडम जल्दी निकाल जल्दी निकाल अरे चला ला सर एक बार जाइए ना अंदर सर बच्चे एक बार चलो भाई अभी धूप में वजह से मैं खड़ा बोल रहा हूँ मतलब हम लोग
आऊंगा कभी इला पे मिलने आता हूँ। हमारे इवेंट में 4 चांद लगाने आए श्री अमिताभ बच्चन का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। एक जोरदार तालियां हो जाएं श्री अमिताभ बच्चन के लिए। हमारे इस इवेंट को ऑनर करने जया जी भी आई हैं, तो एक जोरदार तालियां जया जी के लिए। बच्चन और श्रीमती जया बच्चन जी अपने टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम जया जी इनसे ज्यादा क्यूट और प्यारी हीरोइन आज तक इंडस्ट्री में नहीं आई और आगे लगता भी नहीं कि कोई आएगा। इसके बारे में तो हमें सिर्फ हिमांशु सर बता सकते हैं। हिमांशु मेहता सारा जरा बताएं कि नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, आप बताएं कि ये क्या है। धीरे धीरे वैसा कुछ नहीं। This is where I'm reminded, friends, of Richard Bach, who said that there is no such thing. It goes back, way back into Ayurveda area, where Shushusha used to do cataract, and we have pure would touch somebody's forehead and say what Stephen. Progress can be, what technology can be, and that's how. If somebody remembers, people used to have those thick fat glasses. They used to lie down for 1 month in the bed. They could not move for a very long time. And then there was this medical student, last bench. He saw the cataract being removed, and then, being a last bencher, he didn't know what was going on. So he asked Harold Ridley, "Sir, if we are removing the lens, why don't we implant a lens?" And believe me, in 1949, that's how the first lens implant was born. RAF fighters who used to get the windshield in their eyes because of firefighting, they realized the material which was there was polymethyl methacrylate, PMMA, and that never gave any reaction in the eye. And that's how the first lens implant with a safe material was born, like gold, silicon, PMMA. These are the only things which the body does not react to. Having gone to lens technology, then came the silicon lenses, PMMA lenses, and now we have come to a place where we have hydrophobic lenses. Were never satisfied. Technology kept growing. Even with a small telephone which was in one corner, and you could communicate with people. But as technology advanced, does anybody buy a cell phone today for talking? I think everybody buys for all the other features minus the talking. And that's what cataract surgery has done. No human was born perfect. There was no perfect father, there was no perfect brother or sister. And of course everybody will agree, there was no perfect spouse born in this world. And that's how all lenses, all technology were there to stay for a short time. And it progressed, and we came to the area of phacoemulsification. Having had phacoemulsification and a gold standard, we get laser accuracy. Everybody remembers CNN showing laser-guided missile bombs going on to Iraq and Afghanistan. And that's what these lenses and the era of femtolaser came in. All kinds of manual error should not be permitted, because eyes were the most precious organ that God gave us. There was nothing more precious than that. And they deserve the best and nothing but the best. One more statement, friends, here. All most expensive things in the world were given free to you. That include the air, water, dust, sand, your hands. President Obama will come up which once the eye is docked, within there is precision, there is accuracy. However, because humans still rule the roost, our brain can work faster. But wherever and whenever we can use the help of any kind of technology, mankind and science has always progressed to the next level. And why should we not have the best in this world? Are we second to one? No one in the world. This world to anything? Nobody. We are so proud of that. And this is exactly what I want to say. Why do we need London, Frankfurt, Belgium, or wherever? Why can't we do down the street? And that's the purpose, to progress in our own heart, to do this in one lifetime. Find us in one piece. You rather have a lot of scratches. You rather be used and pulled totally in those years. And that's where all this technology is here to stay. मानना पड़ेगा कि आप अमर जी और जया जी को शॉल दिखाकर इनका स्वागत करें।
ये चुप और साथ में मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप अपने बेस्ट विशेस में 2 शब्द बोलें। देवी और सज्जनों, सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप सब यहाँ आए साथ इस कार्यक्रम में। लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में जितना कुछ जानकारी बतानी थी वो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया आपको। इतना ज्ञान मुझ में नहीं है कि उसको मैं दोहरा सकूं, लेकिन धन्य है हम कि इनके बगल में ही रहते हैं और जब कभी बढ़ती उम्र में आंखों की रोशनी जब चली जाती है सबकी तो इन्हीं के पास आता है। और कई बार आना जाना रहा है डॉक्टर साहब के पास, और ये हमारे नेत्रों को रोशनी देते हैं ताकि हम जीवन को और संसार को और बेहतर नजर से देख सकें। जय जी ने भी अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन, नई मशीन लगवाई गई है इनके क्लिनिक में। मैं आज इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बहुत ही होती रहे। इन्होंने बहुत सही बात कही कि हम लोग इलाज के लिए बाहर न जाएं, यहीं भारतवर्ष में अपना इलाज कराएं। मैंने तो हमेशा ऐसा ही माना है। कई बार मेरे साथ ऐसे हादसे हुए जब मुझे अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन मुझे विश्वास रहा भारतीय डॉक्टरों पर, उनकी चिकित्सा पर, उनकी कामना की यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं उतने नहीं काबिल हैं बल्कि इससे बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हिमांशु सर के लिए 2 शब्द हैं। अमित जी ने बता दिया। आपने एक प्रॉब्लम से तो मुझे रियलाइज हुई कि चश्मा पहनना नहीं पड़ता, अब बगैर चश्मे के भी पढ़ लेती हूँ। ये नई टेक्नोलॉजी आप लाए हैं डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुभकामनाएं। मगर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने आई डोनेशन के लिए प्लेज किया, तो ये टेक्नोलॉजी के बाद हमारी आंखें ठीक रहेंगी कि हम उसको प्लेज कर सकें? बस यही मुझे जानना था। तो टेक्नोलॉजी को आप लाए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो और ऐसा वक्त आए कि जिनके पास इस टेक्नोलॉजी के लिए पैसे ना हो उनको भी ये ट्रीटमेंट कराया दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरी आंखें ऑलमोस्ट मतलब मैं अपनी आई साइट खोने वाली थी और हिमांशु सर ने मेरा ऑपरेशन किया एंटी एंड आंखें मिलने के बाद मैंने हिमांशु सर से कहा था कि मैं अमित जी से मिलना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पीछे पड़ जाती है बुलाने के लिए। तो वही हुआ। तो मैंने अमित जी के साथ कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में परफॉर्म किया था और आज मैं जया जी से भी मिल रही हूँ, सामने रूबरू मिल रही हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि मैं क्या बताऊँ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है सर। आप भगवान बनकर आए थे मेरी लाइफ में, वरना आज मैं बिल्कुल नहीं देख पाती। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ बस इसी तरह सर ऐसे कई सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाएं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना ये आँखों की सारी दूर हो जाए। और अब मैं बुलाना चाहूँगी पार्थ हिमांशु मेहता को गोरख थैंक्स के लिए। अब मैं पार्थ के बारे में क्या बताऊँ आपको, मल्टी टैलेंटेड लड़का है। यूएसए में एडमिशन पाने का पूरा उसने रास्ता बना लिया है और बहुत जल्द वहाँ जाने वाला है। यहाँ सिर्फ इसी तरफ नहीं, ये हर तरह से बहुत टैलेंटेड है। ये म्यूजिशियन है, तबला बजाता है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। That was my first personal interaction with Shri Amitabh Bachchan and my first understanding of how a paper plane is made. On behalf, thank Shweta ji for having graciously hosted this ceremony. Against my father's patients, relatives, friends, etc. and staff of course. As without them this event would not for attending, spending your time. Thank you. हिमांशु सर, आप सर मैं आंटी से कहूँ कि अमित जी का स्वागत करें बुके के साथ। वाह, आंटी आप इनका स्वागत कर रहे हैं।
थोड़ा पीछे कैमरा पीछे रखना के लिए हो जाए प्लीज। थैंक यू। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए, आपने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू। थैंक अच्छा ना दिख रहा है क्या फायदा।